Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the PYQ NEET PYQ 2022 to 2011. You can also follow me on the Telegram and Instagram, which is given in the description box. So let's get started. नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज द वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड द डायडेल्फस स्टेमन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन का मतलब हो गया द अरेंजमेंट ऑफ द पेटल्स, पेटल्स इज समवॉट larger in size, another one is the smaller in size. The diadelphous means two groups of the androecium are there, and it is a characteristic of the Fabaceae family. So if Leguminaceae family, the answer is the Pisum sativum. Option number 3. So in the next question is, which one of the following plants possesses the placentation of the ovule born on the central axis with no septa? इसका मतलब है कि there is unilocular ovary and the ovules are born on this attached to this placenta like this central axis. So इसका आंसर हो जाएगा प्रिम रोज। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है दैट इज dianthus. So next question, choose the mismatch pair of leaf character with its example. यहाँ पर mismatch पूछा गया यानी कि wrong statement पूछा गया है। Opposite phyllotaxy, opposite phyllotaxy यानी कि the buds on which the leaf arises, it is there in the opposite fashion. तो कैलोट्रोपिस हो गया इसका आंसर, और ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। एंड गुआवा हो गया ओसिमम। दिस इज ऑल द एग्जांपल ऑफ द अपोजिट फाइलोटैक्सी। लीफ टेंड्रिल यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। यस, इट इज द राइट आंसर। alternate phyllotaxy, alternate phyllotaxy means each and every node give rise to a single leaf in alternate fashion. So इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, इट इज करेक्ट। देन सनफ्लावर मस्टर्ड, so these are the correct answer. And the palmately compound leaf, palmately compound leaf का एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन। so this is the wrong one, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एंड्रोशियम इन द फ्लावर। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है इन रिलेशन टू द एंड्रोशियम। स्टेराइल स्टेमन्स आर कॉल्ड स्टेमनोड्स, इट इज करेक्ट। then when stamens are attached to the petals, they are known as the epipetalous. Yes. Then monoadelphi is seen in the China rose, it is also correct. Polyadelphi is seen in the pea plant. We have just discussed that. In the Leguminosae family, that is the Fabaceae family, there is diadelphous stamen, so this is wrong answer. Wrong statement. Variation in the length of the anther filament is seen in the mustard, it is also correct. So here the correct option are A, B, C and E. So let us see the option number 2 is the correct one. Now next, the flowers are zygomorphic in, zygomorphic की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर if you want to cut the flower, then there is only one plane that it can divide into two equal half. So here the flowers which are zygomorphic, इसका example हो जाएगा gulmohar and cassia. So B and C. So this is the right option. मस्टर्ड नहीं होगा, धतूरा, चिली, ये सब एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। डायडेल्फस इज फाउंड इन अ वेरी सिंपल, अभी हम लोग डिस्कस किए, इट इज फाउंड इन द पी प्लांट बिकॉज ये एग्जाम्पल है फेबेसी फैमिली यानी कि लेगुमिनी। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पर डिफरेंट फैमिली उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है एंड वी हैव टू मैच। यहाँ पर देखो एंड्रोशियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड्रोशियम क्या है, फ्यूज्ड है। 9+1 यानी कि डायडेल्फस कंडीशन है वंस अगेन, सो इट इज एग्जांपल ऑफ द फेबेसी फैमिली। और क्या इंपॉर्टेंट फीचर हो जाते हैं यहाँ पर, करोला इज 1+2+2 यानी कि ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जाम्पल कि फर्स्ट जो लिखा है ये क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, स्कील कहते हैं। सो दिस इज एन वी मैच द कॉलम दिस फेबेसी फैमिली। ओके, नाउ दिस इज showing epipetalous condition. Corolla is fused but androecium is not fused, and this is the characteristic of, this is an characteristic of Solanaceae family. So here it goes to this option number 4. And here perianth, perianth epiphylous condition is shown over here कि यहाँ पर androecium it is fused with the perianth, and this is
tricarpillary ovary, superior ovary. So this is an example of the Liliaceae family. एंड लास्ट वन देखिए यहाँ पर जो एंड्रोशियम है वो 2+4 है, वेरिएशन इन लेंथ है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गोज टू द ब्रासिकेसेई फैमिली. सो हियर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर. तो यहाँ पर जो रूट बेस से अराइज होती हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, रेडिकल जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, तो यहाँ पर फाइन नेटवर्क ऑफ फाइब्रस रूट्स हो जाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस रूट. So option number A is correct one. Sweet potato is a modified. ये किसका modification है sweet potato? It is a modification of the adventitious root, यानी कि other than radical से वहाँ पर ये arise हो रहा है. So this is called the adventitious root. Roots play insignificant role in the absorption of water in. अब roots का insignificant role कहाँ पर होगा absorption of water पूछा गया है. So the example is the pistia, क्योंकि ये एक हाइड्रोफाइट है. न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन. न्यूमेटोफोर्स क्या होता है और ये कहाँ पर होता है? न्यूमेटोफोर्स क्या होगा कि देर आर सम रूट्स विच कम आउट वर्टिकली टू गेट ऑक्सीजन. और ये कहाँ पर होगा? जहाँ पे दलदल है, मार्शी एरियाज हैं, तो प्लांट का नाम हो जाता है राइजोफोर. और यहाँ पर कुछ ऐसे रूट्स यहाँ पर बाहर आ जाती हैं. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्मॉल पोर्स. उनका नाम क्या होता है? न्यूमेटोफोर. दिस इज फॉर द absorption of oxygen. So this is the right option, option number A. In bougainvillea, thorns are the modification of. बोगनवेलिया की बात की जा रही है, थॉर्न का मॉडिफिकेशन यहाँ पर पूछा गया है. दिस मॉडिफिकेशन ऑफ यहाँ पर स्टेम. उसके और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सिट्रस भी इसका एग्जांपल हो जाएगा. सिट्रस में भी थॉर्न बना हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन. स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है? So this you have to find out the tendrils of the cucumber. Yes, this is the correct one. Flattened structure of opuntia. यहाँ पर अपंशिया की बात की गई है, तो यहाँ पर देखो जो फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है अपंशिया का, कि पीटियोल. पीटियोल develops a flattened structure of the opuntia. It is known as the phyllodes. This is the wrong statement. तो यहाँ पर यही पूछा गया है. Option number B is the correct one. And the picture of Nepenthes, this is also correct. Thorns of the citrus, it is also correct. So option number B is the correct one. Stem modify into the flat green organ performing the function of the leaf. यहाँ पर देखो स्टेम की बात की गई है और इसका एग्जाम्पल हो जाता है अकेसिया. यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्टेम जो है ना एज अ डज द फंक्शन ऑफ लीफ. ये इसको क्या कहेंगे? क्लैडोफाइलोक्लैड्स. और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अकेसिया. एन एग्जाम्पल ऑफ द एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज. अंडरग्राउंड स्टेम की बात की गई है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वेरी सिंपल कि पोटैटो. बिकॉज ये जितने भी लिखे हुए ये सारे रूट के मॉडिफिकेशन हैं. स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू. अब यहाँ पर देखो ये रूट का मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो, जबकि पोटैटो जो है वो कोलोकेसियन जिंजर ये सब क्या है? स्टेम के मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है. सो दिस इज द राइट आंसर. Which one of the following is a xerophytic plant in which the stem is modified into flat green and the succulent structure? तो अभी यहाँ पर वही इसका एग्जाम्पल पूछा गया है कि स्टेम modified a flat green succulent structure की just like leaf to perform the function of the leaves. यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा acacia. This is the right. मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पर. तो बेसल प्लेसेंटेशन की बात की गई है, तो बेसल प्लेसेंटेशन इज सीन इन द सनफ्लावर. और अदर एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मारीगोल्ड में भी बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है. एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करें तो इट इज सीन इन द चाइना रोज, लेमन और टोमेटो में भी देखने को मिलता है. पेराइटल की अगर बात करें तो इट इज सीन इन द मस्टर्ड और आर्जीमोन, अभी हम लोग डिस्कस किया. एंड द फ्री सेंट्रल ये हमें देखने को मिलता है डायंथस या फिर primrose में. The term polyadelphus is related to. Polyadelphus it is related to the androecium. यहाँ पर वो joint नहीं होते. Number of stamens they are free. How many plants among, यहाँ पर पूछा गया है have stamens with a different length. तो यहाँ पर याद रखो कि Brassicaceae में different length हमें देखने को मिलता है, लेकिन Solanaceae में कहीं से कहीं भी देखने को नहीं मिलता है. तो let us find out. तो यहाँ पर जो शो करते हैं different length stamens वो कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाता है हमारा सैल्विनिया,
then next it is the mustard, then radish and turnip. so here यहाँ पर हमारे फोर जो हैं वो इज द राइट आंसर की फोर जो है ना शो करते हैं डिफरेंट लेंथ स्टेमन्स की. रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ. तो रेडियल सिमेट्री यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पूछा गया है, तो दिस इज फाउंड इन द ब्रेसिका. नेक्स्ट, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इट इज फाउंड इन. तो फ्री सेंट्रल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इट इज फाउंड इन द डायंथस, और उसका दूसरा एग्जांपल हो जाता है प्रिमरोज. द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अ पेपिलोनिशियस करोला इज कॉल्ड. यहाँ पर स्टैंडर्ड पेटल की बात की गई, इट इज नोन एज द वैक्सीलम. एमंग चाइना रोज, mustard, brinjal, potato, guava, cucumber, onion and tulip. How many plants of the superior ovary? superior ovary यहाँ पर बतानी है. तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो superior ovary नहीं है. ओके, तो यहाँ पर let us find out guava and cucumber में यहाँ पर inferior ovary होती है. ओके, सो यहाँ पर जो other examples हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So the answer is the option number D, that is the 6. Axial placentation is प्रेजेंट इन. एक्साइल प्रेजेंटेशन किसमें प्रेजेंट होता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है. सो एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन द लेमन. कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर. तो कील जो होता है वो फेबेसी फैमिली में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो फेरा. दिस इज द राइट आंसर. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मार्जिन ऑफ द सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं होता है, देन इट इन दिस केस इट इज नोन एज द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ यहाँ पर देखो हाइपोगाइनस फ्लावर पूछा गया है, यहाँ पर लिस्ट दी गई है सुपीरियर ओवरी. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा सुपीरियर ओवरी नहीं है. तो यहाँ पर जो नहीं है दैट इज अ बिटर गोर्ड, देन उसके बाद है पम्पकिन, देन कुकम्बर एंड गुआवा. तो ये जो एग्जांपल हो जाते हैं वो आपके इन्फीरियर ओवरी के हो जाएंगे. और यहाँ पर देखो प्लम, रोज. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेमी इन्फीरियर ओवरी. तो यहाँ पर हाइपोकाइनस पूछा गया है, तो फिर लेट अस काउंट. मस्टर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो यहाँ पर द राइट आंसर इज द 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. इन चाइना रोज, चाइना रोज की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पूछी गई है. द फ्लावर्स आर, चाइना रोज में कैसे फ्लावर्स होते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक तो होता है, यस. हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी भी होता है विद द ट्विस्टेड एस्टिवेशन. सो दिस इज द राइट आंसर. जाइगोमॉर्फिक नहीं होता है, इपिगाइनस भी नहीं होगा. नेक्स्ट, among flowers of the calotropis, these are the name of the plants. अब यहाँ पर पूछा गया कि किसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन होती है. तो ये लेट अस फाइंड आउट कि किसमें नहीं होती है. तो इसमें लेट अस चेक. सस्बेनिया में नहीं होगा वॉल्वेट एस्टिवेशन, देन स्वीट पी, देन इंडिगोफेरा, देन सोयाबीन एंड ग्राउंडनट. सो कैन यू सी दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फेबेसी फैमिली. सो इसके अलावा लेट अस काउंट कि किसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन होती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी. प्लांटेशन इन द टोमेटो एंड द लेमन इज, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टोमेटो लेमन में एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है. गाइनोशियम कंसिस्ट्स ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स इन द फ्लावर्स ऑफ. यहाँ पर फ्री पिस्टल किसमें देखने को मिलता है. माइकेलिया. दिस इज द राइट आंसर. बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन. तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें प्रेजेंट होता है. फेबेसी यानी कि लेगुमिनेसी फैमिली में. सो लेट अस फाइंड आउट द मेंबर्स ऑफ द फेबेसी फैमिली. सबसे पहले हो जाएगा ग्राम, देन अरहर, देन सनहेम, देन मूंग एंड पी एंड ल्यूपिन. सो लेट अस काउंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो आंसर आ जाएगा हमारा 6. फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन. जाइगोमॉर्फिक किसमें होता है. तो वेरी सिंपल, गुलमोहर अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर्स. हाफ इंफीरियर किसमें होती है. इट इज प्रेजेंट इन द पीच. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द प्लासेंटेशन इन द डायंथस. तो यहाँ पर डायंथस की बात की गई है. तो डायंथस में प्रेजेंट होता है फ्री सेंट्रल.
तो यू कैन सी दिस इज अ मोनोलोकुलर ओवरी। सो ये डायंथस में इस तरह का प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई देता है। देन अगर मार्जिनल की बात करते हैं तो मार्जिनल में इस तरह का प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। देन एक्साइल की बात करें तो ट्राइलोकुलर ओवरी है और ये इस तरह से दिखाई देगा एक्साइल प्रेजेंटेशन। देन इफ यू विल टॉक अबाउट द पेराइटल प्रेजेंटेशन तो ये ऑन द मार्जिन यहाँ पर ओव्यूल्स का अटैचमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। एंड द बेसल वन इट इज जस्ट लाइक this placenta arises from the base part to which the ovule is attached. So this is the right answer. Coconut fruit, it is coconut fruit के बारे में पूछा गया है। It is a example of drupe. The morphological nature of the edible part of the coconut is, edible part coconut का क्या होता है, endosperm. Then placenta and the pericarp are both edible portion in, प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों ही यहाँ पर एडिबल पोर्शन होते हैं किसमें, टोमेटो में। दिस इज द राइट ऑप्शन। देन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम, यहाँ पर एग्रीगेट फ्रूट के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैनी फ्रूटलेट से ये डेवलप होता है लेकिन वो फ्यूज नहीं होता है, यानी कि मल्टी कार्पलरी एंड द एपोकार्पस गाइनोशियम। सो दिस इज द राइट आंसर एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कस्टर्ड एप्पल। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके एग्जाम्पल पूछा गया है कंपोजिट फ्रूट का, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है मलबरी, देन फिग, देन पाइनएप्पल। दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स of the composite fruit. So option number D is the right answer. The coconut water and the edible part of the coconut is equivalent to, यहाँ पर coconut water और edible part of the coconut यहाँ पर पूछा गया है, ये किसकी equivalent होता है, it is equivalent to the endosperm. A drupe develops, इसका example हो जाएगा mango, very simple. Then a fruit develop from the hypanthodium inflorescence. hypanthodium inflorescence से जब भी कोई फ्रूट डेवलप होता है तो उसको कहते हैं साइकोना। कॉटिलिडेंस एंड टेस्टा रिस्पेक्टिवली आर द एडिबल पार्ट इन, तो कॉटिलिडेंस का जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है ग्राउंडनट और टेस्टा का जो पार्ट होता है दैट इज पोमग्रेनेट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द फ्लैशी रिसेप्टिकल ऑफ द साइकोनस ऑफ द फिग एनक्लोजेस अ नंबर ऑफ, यहाँ पर फिग की बात की गई है, इसका फ्रूट को कहते हैं साइकोनस और उसमें क्या होता है, एकीन्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज द राइट आंसर। ड्राई इंडेसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी की बात की गई है यहाँ पर, और वो बाइकार्पलरी है एंड हियर द आंसर इज सिप्सेला। नेक्स्ट, द फ्रूट इज चैम्बर डेवलप फ्रॉम द इंफीरियर ओवरी एंड हैज सीड विद द सकुलेंट टेस्ट। यहाँ पर एक बार फिर से इंफीरियर ओवरी का एग्जाम्पल पूछा गया है और सकुलेंट टेस्ट तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पोमग्रेनेट। पाइनएप्पल अनानास इज फ्रूट इज डेवलप्स फ्रॉम, so here it develops from a cluster of the compactly borne flowers on a common axis. So this is the right answer. Which one of the following fruit the edible part is the aril? Aril किस में खाया जाता है? It is eaten in the case of the lychee. Which of the following represent the edible part of fruit of lychee? तो यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस किया juicy aril. नेक्स्ट, द एडिबल पार्ट ऑफ द मैंगो, मैंगो में एडिबल पार्ट कौन सा होता है, मीजोकार्प। नाउ नेक्स्ट, जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द लेमन फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम, इट डेवलप फ्रॉम द एंडोकार्प, एंडोकार्प इज द राइट आंसर। देन जियोकार्पिक फ्रूट इज, जियोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर पोटैटो, पीनट, ओनियन और गार्लिक। तो पीनट इज द राइट ऑप्शन। एडिबल पार्ट इन द मैंगो इज, एडिबल पार्ट होता है मैंगो का भी हम लोग डिस्कस किया, दिस इज द मीजोकार्प। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल विच इज फ्यूज विद द फ्यूनिकल आर्ट, फ्यूनिकल से फ्यूज रहता है ओव्यूल एट द प्लेस ऑफ द हाइलम, दिस इज द राइट आंसर। कॉटिलेडन ऑफ द मेज ग्रेन इट इज कॉल्ड, मेज ग्रेन क्या है, मोनोकॉट है, उसका क्या कहते हैं, स्क्यूटलम। Wheat grain has an embryo with one large shield shaped cotyledon, और shield shaped cotyledon एक बार फिर से the answer is the scutellum. Which one of the following statement is correct? यहाँ पर correct statement बताना है। The seed in the grasses is not endospermic. This is wrong. Mango is the parthenocarpic fruit. This is also wrong. The protein allurin layer is present in the
maize grain. This is the right statement. Which one of the following statement is correct? यहाँ पर हमें correct statement बताना है. The flower of a tulip is a modified shoot. Yes, it is the right answer. Tomato fruit is a capsule. This is wrong. This is berry. Seed of the orchid have oil-rich endosperm. No, it is wrong. A placentation is a primrose. Is the basil? No, it is the free central. Then next, the scutellum observed in the grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in the monocotyledon? Cotyledon, endosperm, alluring layer और plumule. यहाँ पर ये पूछा गया है कि स्क्यूटलम इज इक्विवेलेंट टू, तो वेरी सिंपल, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा कॉटिलिडन, क्योंकि ये मोनोकॉट्स में जो कॉटिलिडन होता है उसको स्क्यूटलम कहते हैं. एन एग्जाम्पल of seed with endosperm, perisperm and the caruncle is. तो example of seed पूछा गया है coffee, lily, castor and cotton. The answer is the castor. Endosperm is consumed by developing embryo in the seed of. यहाँ पर पूछा गया है कि एंडोस्पर्म वो कंज्यूम हो जाता है, यानी कि एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देगा. तो यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएंगे पी, मेज, कोकोनट और कैस्टर. सो हियर यहाँ पर राइट आंसर विल बी द पी. The alluring layer in the maize grain is especially rich in. alluring layer एक्चुअली क्या होती है? प्रोटीन लेयर ही होती है. ऑप्शंस देख लेते हैं. प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड और ऑक्सीजन. तो राइट आंसर इज द प्रोटीन्स. विच इज द करेक्ट पेयर फॉर एडिबल पार्ट? तो यहाँ पर दिया गया है टोमेटो थैलमस. दिस इज रॉन्ग. मेज कॉटिलिडन्स. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. मीजोकार्प गुआवा के लिए लिखा गया. इट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट एंड द राइट ऑप्शन इज द डेट पाम, दैट इज द मीजोकार्प. ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ. यहाँ पर ट्राइकार्पिलरी पूछा गया है फेबेसी, पोएसी, लिलिएसी और सोलेनेसी. सिनकार्पस गाइनोशियम, तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिलिएसी फैमिली. Vexillary estivation is the characteristic of the family. Vexillary estivation है जो characteristic है Fabaceae, Asteraceae, Solanaceae और Brassicaceae. तो this is the right answer, that is the Fabaceae यानी कि Leguminosae family. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.